Okay, good morning everyone. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, let's just continue chapter number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. Till now, what we have done, after the defeat of First World War, there are certain changes that took place in Germany. The first one was the abdication of emperor. So the emperor that was ruling at that time in Germany, he abdicated. He abdicated his throne. He surrendered his throne, and this thing gave an opportunity to Weimar Republic and democratic organization to just grow up and uh, establish a democratic constitution, federal structure, and according to that Weimar Republic or democratic government, all the deputies are now elected on the basis of universal franchise, and they are elected in the German parliament, also called as Reichstag. Then what we have studied, that the new Weimar Republic was not at all welcomed by the people. It was opposed by the people because Weimar Republic was forced to sign the Treaty of Versailles or peace treaty, which is very, very harsh and humiliating for the people of Germany. So what the people of Germany did, they opposed or they didn't accepted or supported the new Weimar Republic, the new democratic form of government, because that form of government signed the treaty, which was very harsh and humiliating for the complete country. Then what we have done, we have done the supporters, all those who are supporting Weimar Republic, namely Catholics, Socialists, and Democrats. They were not at all accepted by people, and they were mockingly called as November criminals. So the people are not at all in favor of uh, Weimar Republic as such. Then what we have done, the First World War had a devastating impact on the entire continent, both psychologically as well as financially. From the continent of creditor, Europe turned into the continent of debtor. So this is also one of the change that took place after the defeat of First World War. Then each and every country is showing that the soldiers are ranked above civilians, and they are showing that each and every person should be aggressive, he should be strong, he should be masculine, so that he could occupy some space in military, he should join himself in military forces, he should become a soldier and would participate in the war. So these all things were showing the brainwash. Basically, the people were brainwashed and they were influenced by the politicians, by the medias out there. And what media was showing, it was showing a picture that soldiers were living the great life, media glorified the French life, but in reality soldiers were living the miserable life. And they every time they have to face certain gases, poisonous gases, as well as the rats are feeding the dead bodies of other soldiers. So their life was very, very, very miserable. But what the thing is shown, what actually was shown is that the soldiers live the best life, trench life is best. So each and every person should add himself in military, should join himself in military, and should become a soldier. Now, let's talk about the political and economic changes that took place in Germany. So, the topic is political radicalism and economic crisis. Political radicalism का मतलब है political, किस तरह के political changes जर्मनी में देख रहे थे, और economic crisis मतलब किस तरह की economic situations या economic चेंजेस हमको कंट्री में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात करते हैं कि पॉलिटिकली सिचुएशन क्या थी जर्मनी की। पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। देखो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि जो न्यू वेमा रिपब्लिक का बर्थ हुआ था, जो एक नई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी, लोग उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी वेलकम नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहा जाता है, पीस ट्रीटी कहा जाता है, जो जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्श और ह्यूमिलिएटिंग थी। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे थे डिफीट के लिए और इस पीस ट्रीटी के लिए किसको ब्लेम कर रहे थे, किसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर रहे थे, वेमा रिपब्लिक को, कि अगर पीस ट्रीटी साइन की गई है, अगर हमारे को इतना डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ा है, तो वो वेमा रिपब्लिक की वजह से, अगर हमारी कंट्री डिफीट करके गई है तो वो वेमा रिपब्लिक की वजह से। अब स्टूडेंट्स देखो, हमको क्या दिख रहा है धीरे धीरे कि वेमा रिपब्लिक जो है वो वीक होता जा रहा है।
उसकी बर्थ तो हो गई, वेमर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ तो गई अपनी कंट्री में, बट धीरे धीरे वो वीक होती जा रही थी, उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रही थी। और इसी वीकनेस का स्टूडेंट्स एक पार्टी ने एडवांटेज उठाया जर्मनी में, और जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रख दिया। तो उस टाइम पे जर्मनी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी। फर्स्ट ग्रुप था वेमर रिपब्लिक का, जो अभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी, और सेकेंड ग्रुप था स्पार्टासिस्ट लीग का। तो ये दोनों पार्टीज आपस में अब क्या करने लगी, लड़ने लगी, अपोज करने लगे एक दूसरे को। तो क्योंकि वेमर रिपब्लिक बहुत वीक होती जा रही थी, और इसी वीकनेस का फायदा उठा के एक पार्टी आई, और उस पार्टी का नाम है स्पार्टासिस्ट लीग। उस वीकनेस का फायदा उठा के कि अब क्योंकि वेमर रिपब्लिक का डाउनफॉल दिख रहा है, पॉपुलर सपोर्ट नहीं है उसको इतना मिल रहा, तो हम ऐसी एक पार्टी, दूसरी पार्टी लेकर आते हैं जिससे कि हम लोग पावर में अब आ जाए और वेमर रिपब्लिक पावर से हट जाए, वेमर रिपब्लिक की पावर रिड्यूस हो जाए। तो इसी वीकनेस का फायदा उठाया एक पार्टी ने, उस पार्टी का नाम था स्पार्टासिस्ट लीग, आपको नाम याद रखना है। अच्छा, अब इन इन पार्टीज की आइडियोलॉजीज की अपन बात करते हैं। वेमर रिपब्लिक तो यू ऑल नो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड सपोर्टर्स ऑफ वेमर रिपब्लिक आर कैथोलिक्स, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट। सो वेमर रिपब्लिक वांटेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और बेसिकली वेमर रिपब्लिक इज इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वेमर रिपब्लिक किसके सपोर्ट में थी, डेमोक्रेसी, क्योंकि कंट्री में डेमोक्रेसी ही मेंटेन होनी चाहिए। वहीं पे जो दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी जो इमर्ज हुई वेमर रिपब्लिक की वीकनेस को देखकर कि वेमर रिपब्लिक धीरे धीरे वीक हो रही है, इसी वीकनेस का एडवांटेज उठाकर जो नेक्स्ट पार्टी मर्ज हुई जिसका नाम था स्पार्टासिस्ट लीग। ये पार्टी जो थी बहुत ही ज्यादा, अपन आगे जाके हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, रशियन रेवोल्यूशन, अभी अपन थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। तो ये पार्टी जो थी ये रशियन रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। रशिया में एक मोनार्क थे, जार निकोलस करके। वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे, वो बहुत ही अनजस्ट थे अपनी पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक को लेकर वो बहुत ही, मतलब उनका जो बिहेवियर था टुवर्ड्स हिज ओन पीपल, वो बहुत ही ज्यादा वर्स था, बहुत ही ज्यादा बैड था। तो वहां पे जो भी सारे वर्कर्स थे उनके टुवर्ड्स, क्योंकि बहुत अनजस्ट थे, बहुत ही पार्शियल थे, इसीलिए वहां पे एक पार्टी इमर्ज हुई थी रशिया में, बोल्शेविक पार्टी करके, जिसने बहुत ही हंगामा मचा के रख दिया था एक तरह से रशिया में। तो पता है, ये जो नई पार्टी जर्मनी में आई, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई वो रशियन रेवोल्यूशन से। स्पार्टासिस्ट लीग चाहती थी कि जिस तरह से रशिया में एक बोल्शेविक पार्टी करके बोल्शेविक पार्टी इमर्ज हुई, उसी तरह से हम भी अपनी पार्टी को इमर्ज करते हैं। उसी के पैटर्न पे, उसी के फुट स्टेप्स पे स्पार्टासिस्ट लीग जो है वो स्टार्ट हुई, और वो चाहती थी कि जिस तरह से बोल्शेविक पार्टी वर्क करती थी, बोल्शेविक पार्टी उस टाइम पे उनके लीडर का नाम था व्लादिमीर लेनिन, एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो चाहती थी वन पार्टी गवर्नेंस हो, वन पार्टी गवर्नेंस हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी अपन ने पढ़ा है ना, ये जैसे अपन ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपने पढ़ा होगा, चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इसी तरह की एक कम्युनिस्ट पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और उसी के फुटस्टेप्स पे चलने वाली थी अब ये स्पार्टासिस्ट थी। स्पार्टासिस्ट लीग उस पार्टी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई थी। तो स्पार्टासिस्ट लीग चाहती थी कि अब जर्मनी में भी क्या आना चाहिए, कम्युनिज्म आना चाहिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी बननी चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं, एक कम्युनिस्ट पार्टी बननी चाहिए। ये स्पार्टासिस्ट लीग चाहती थी कि इसने क्या करा, सारे के सारे सोवियट्स ऑफ वर्कर्स और सेलर्स, ग्रुप ऑफ सेलर्स और वर्कर्स डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में इसने फॉर्म कर दिए, स्टैब्लिश कर दिए, जिससे इसकी पार्टी का क्या हो, प्रमोशन हो। लोग क्या करते थे, कम्युनिज्म का आइडिया स्प्रेड करने लगे। जो स्पार्टासिस्ट पार्टी लीग के मेंबर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो पूरी जर्मनी में इनके आइडियाज कि अब कम्युनिज्म आना चाहिए, कम्युनिज्म के एडवांटेजेस क्या क्या है, आप क्या क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं अगर कम्युनिस्ट पार्टी आएगी, तो ये सब कुछ स्प्रेड करने लगे थे। और स्पार्टासिस्ट लीग जो है वेमर रिपब्लिक से आपस में रिवोल्ट करने लगी थी। स्पार्टासिस्ट लीग एक तरह से सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस चाहती थी, जिस तरह से पहले रशिया में जो गवर्नेंस थी, मैं आपको बताया ना, बोल्शेविक पार्टी, उसी तरह का एक गवर्नेंस, उसी तरह का रूल वो चाहती थी। तो अब इन दोनों ही पार्टीज में क्या हुआ, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ। जहां वेमर रिपब्लिक चाहती है डेमोक्रेसी है, स्पार्टासिस्ट लीग चाहती है कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों ही पार्टीज में क्या हुआ, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ। अब ऑब्वियसली अब चाहे कोई पार्टी वीक हो रही है, चाहे वेमा रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, चाहे उसको लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट उस टाइम पे एग्जिस्टिंग जो रूल रूल कर रहा था पार्टी, वो तो वेमा रिपब्लिक ही थी। रूलर तो उस टाइम पे वेमा रिपब्लिक ही थी, वही रूल कर रही थी जर्मनी को, है ना। तो वेमा रिपब्लिक ने क्या करा, जब रिवॉल्ट करने लगी, जब वो अपोजिशन करने लगी, वो पार्टी अपोज करने लगी स्पार्टासिस्ट लीग वेमा रिपब्लिक को, तो वेमा रिपब्लिक ने फ्री कॉप्स मतलब जो फर्स्ट रेवोल्यूशन में
जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, जो लड़ चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो उन लोगों की हेल्प से, तो एक्स ऑफिसर्स, एक्स सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनकी हेल्प से वेमा रिपब्लिक ने स्पार्टासिस लीग को क्या कर दिया, एक बार के लिए तो क्रश डाउन कर दिया, एक बार के लिए तो सप्रेस कर दिया। बट स्पार्टासिस लीग भी अपनी बात पे अड़ी रही थी। कुछ टाइम बाद, एक बार सप्रेस होने के बाद, स्पार्टासिस लीग ने फिर से अपनी कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो वो चाहती थी, वो जर्मनी में उन्होंने बना ली। अब ऑब्वियसली एक पार्टी जो वेमा रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती है, वहीं पे दूसरी पार्टी आ गई जो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती है, तो दोनों ही पार्टी वहां पे क्या हो गई, आ गई। अब दोनों ही पार्टीज आ गई तो दोनों पार्टी एक दूसरे का क्या बन गई, एनिमी बन गई। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट बिकेम द एनिमीज ऑफ ईच अदर। दो पार्टीज आ गई, मतलब दो थॉट्स आ गए जर्मनी में। अब दो थॉट डेवलप हो गए, दो आइडियोलॉजीज डेवलप हो गई। एक थॉट है डेमोक्रेसी का और दूसरा थॉट है कम्युनिज्म का। कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जर्मनी में दो थॉट्स डेवलप हो गए थे, टू थॉट्स या टू ग्रुप्स में जर्मनी डिवाइड हो गई थी। और हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम लोगों में यूनिटी रहेगी तब तो हम जाके अपनी जर्मनी को और स्ट्रांग बना पाएंगे, किसी ने कुछ बुरा करा है तो उसको रिमूव कर पाएंगे। पर जर्मनी इस टाइम पर टूट गया था, जर्मनी में यूनिटी जो थी वो ब्रेक हो गई थी, क्योंकि अब जर्मनी दो ग्रुप में डिवाइड हो गया था, दो थॉट्स में डिवाइड हो गया था, दो आइडियाज में डिवाइड हो गया था। एक आइडिया था डेमोक्रेसी का, वेमा रिपब्लिक। एक आइडिया था कम्युनिज्म का, स्पार्टासिस्ट लीग। तो इन दोनों पार्टीज के आने से, इन दोनों पार्टीज के रिवॉल्ट, ये दोनों पार्टीज आपस में रिवॉल्ट करती रह गई, ये दोनों पार्टीज आपस में अपोज करती रह गई, उसका फायदा उठा ले गया एडोल्फ हिटलर। यही चीज हुई स्टूडेंट्स, जैसे वेमा रिपब्लिक, स्पार्टासिस्ट लीग आपस में लड़ते रह गए, या अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रह गए, वो उसको ब्लेम कर रही है, वो उसको ब्लेम कर रही है, ये यही करते रह गए, और जर्मनी में आ गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इस इंस्टेबिलिटी और डिसयूनिटी का फायदा एडोल्फ हिटलर ने उठाया। तो अब जब एडोल्फ हिटलर पावर में आएगा, और एडोल्फ हिटलर जो भी गलत काम, जो उसने ज्यूस पॉलिसी, जो भी उन्होंने गलत काम करा है, उसको कोई अपोज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जर्मनी में खुद में अब यूनिटी नहीं रही है। जर्मनी खुद अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अगर वेमा रिपब्लिक अडोल्फ हिटलर को अपोज करने जाएगी तो स्पार्टासिस्ट लीग उसको पीछे खींच लेगी। अगर स्पार्टासिस्ट लीग एडोल्फ हिटलर को अपोज करने जाएगी तो वेमा रिपब्लिक उसको पीछे खींच लेगी। तो ये दोनों पार्टीज आने की वजह से, स्पार्टासिस्ट लीग की मर्ज होने की वजह से दो ग्रुप में डिवाइड हो गया जर्मनी, और जर्मनी की यूनिटी वहीं की वहीं खत्म हो गई। और इसी डिसयूनिटी का एडवांटेज कौन उठा ले गया, एडोल्फ हिटलर। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म या पॉलिटिकल फील्ड में क्या चेंजेस आए स्टूडेंट्स, पहले थे वेमा रिपब्लिक, अब आई स्पार्टासिस्ट लीग। ये चाहती है डेमोक्रेसी, ये चाहती है कम्युनिज्म। दोनों ही पार्टीज के बीच में हो रही है टक्कर, दोनों ही पार्टीज बन गए एक दूसरे की एनिमी। पूरी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड करके रख दिया। कुछ पार्ट चाहता है डेमोक्रेसी, दूसरा पार्ट चाहता है कम्युनिज्म। ठीक है, दो पार्ट में कंट्री डिवाइड हो गई, कंट्री की यूनिटी वहीं की वहीं खत्म। यूनिटी कंट्री की ब्रेक हो गई, और अब कौन उस डिसयूनिटी का, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के लेके जाएगा, वो होंगे एडोल्फ हिटलर। तो इस तरह की पॉलिटिकल चेंजेस जर्मनी में दिख रहे थे। इसके अलावा पॉलिटिकली नहीं स्टूडेंट्स, सोशली और इकोनॉमिकली भी जर्मनी बहुत हैरस हो रहा था। जर्मनी बहुत ही ज्यादा, जर्मनी के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी डिप्लीट, बहुत ही डिवास्टेटिंग और मिजरेबल कंडीशन थी। तो जरा पढ़ते हैं कि इकोनॉमिकली जर्मनी को क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ा था आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पॉलिटिकली हमने देख लिया, पॉलिटिकली जर्मनी बहुत इनस्टेबल हो गया था, जर्मनी की स्टेबिलिटी खो गई थी, जर्मनी से यूनिटी खो गई थी, जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब इकोनॉमिकली बात करते हैं, इकोनॉमिकली जर्मनी पर क्या फर्क आया, क्या 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 चेंजेस आए। और इसी चेंज का नाम है स्टूडेंट्स हाइपर इन्फ्लेशन। किस तरह की प्रॉब्लम जर्मनी में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिली, उस प्रॉब्लम का नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। जब किसी भी कमोडिटी का, जैसे मेरे पास फोन है, इस फोन का जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो इसको, तो हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन आ गया। और जैसे सपोज करो, जैसे ये फोन है 50,000 का, अब इस फोन का प्राइस 50,000 से 52,000 हो गया, दैट मीन्स इन्फ्लेशन आ गया। सपोज करो इस फोन का प्राइस 50,000 से हो गया 1 लाख, दैट मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन। जब प्राइस किसी भी कमोडिटी के एक्सेसिवली हाई हो जाते हैं, उस सिचुएशन को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं ना किसी भी गुड्स के प्राइस, उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन।
ठीक है, तो अब सिचुएशन में, अब जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने वाली है। जरा देखते हैं कैसे कैसे ये सिचुएशन डेवलप हुई, कैसे ये प्रॉब्लम डेवलप हुई। जर्मनी एट फॉट द वॉर लार्जली, देखो जर्मनी ने जो भी वॉर लड़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा था, वो लोन्स ले लेकर लड़ा था। इसके अलावा अब उसको वॉर गिल्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग उसको 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन भी देना पड़ा। तो ये दोनों का पेमेंट जर्मनी किस में कर रही थी? गोल्ड में। लोन का पेमेंट भी और कंपनसेशन का पेमेंट भी जर्मनी किस में करती थी? गोल्ड में करती थी। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज का पेमेंट गोल्ड में करते जाओगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो आपका जो रिसोर्स है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो वो खत्म होगा। और यही जर्मनी में हुआ। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए, वो लोन का पेमेंट कर रही थी, कंपनसेशन पे कर रही थी गोल्ड से, और एक टाइम ऐसा आया जब जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स हो गए खत्म। फिर 1923 में जर्मनी ने कहा मेरे पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं है, मैं तो कंपनसेशन नहीं पे कर सकता, मैं तो नहीं कर रहा कंपनसेशन, जाओ क्या कर लोगे तुम, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास गोल्ड नहीं बचा है, आप मेरे से कंपनसेशन मांग रहे हो, मेरे पास गोल्ड नहीं है, मैं तो नहीं पे कर रहा कंपनसेशन। फ्रांस ने कहा, अलाइड पावर में से फ्रांस ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कंपनसेशन पे नहीं कर रहे हो, हम आपकी एक और टेरिटरी ले लेते हैं। तो फ्रांस ने क्या करा, जर्मनी की एक और टेरिटरी, एक इंडस्ट्रियल एरिया, एक कमर्शियल एरिया जिसका नाम था रुर, उस एरिया को कैप्चर कर लिया। और यही नहीं स्टूडेंट्स, जर्मनी में और भी चेंजेस देखने को मिल रहे थे। वहां पे इन्फ्लेशन तो था ही, ऑब्वियसली फाइनेंशियली तो वीक हो ही गई थी पूरी कंट्री, पूरा कॉन्टिनेंट फाइनेंशियली वीक हो गया था। अब वहां पे क्या देखने को मिल रहा था जर्मनी में, इसी टाइम पर, ऐसे ही टाइम पर कि जो भी सारे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे उतर आए थे, उनको पैसे नहीं दिए, जब उनको वेजेस नहीं मिल रहे थे, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर आए। अब वर्कर्स स्ट्राइक पे आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं काम करेंगी, तो हम डेवलप कैसे करेंगे? अब इन सब जो सिचुएशन थी जर्मनी की, वो वर्स्ट पे वर्स्ट, वर्स्ट पे वर्स्ट होती जा रही थी। तो अब इस सिचुएशन से कैसे डील करा जाए भाई, कैसे डील करें इस सिचुएशन को? हमारे पास गोल्ड रिजर्व नहीं है, कंपनसेशन हमको पे करना है, पे नहीं करेंगे तो हमारी टेरिटरी चली जाएगी, धीरे धीरे करके पूरी जर्मनी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा वर्कर स्ट्राइक पे आ गए हैं, कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो जर्मनी ने सॉल्यूशन ढूंढा। क्या करते हैं, हम अपनी पेपर करेंसी को प्रिंट करते हैं। जर्मनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि पेपर करेंसी, हमारे जो नोट्स है उनको धड़ाधड़ प्रिंट करते गए। एक ये दिन रात, सुबह शाम प्रिंट 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 प्रिंट, भर भर के पेपर करेंसी जर्मनी ने प्रिंट करी। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जर्मनी का सॉल्यूशन था पेपर करेंसी प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर की ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही है, इकोनॉमिकली वो बहुत पुअर हो चुकी है, फाइनेंशियली वो बहुत क्रिपल्ड हो चुकी है, तो नोट्स को प्रिंट करना रेकलेसली इज नॉट द सोल सॉल्यूशन। ये एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर करेंसी प्रिंट करने पर ही कोई कंट्री अपनी इकोनॉमी को रेज कर सकती, कोई कंट्री अपने आप को रिच बना सकती, तो सारी कंट्रीज ही अपने नोट छाप छाप के, नोट प्रिंट कर करके वो अमीर हो जाती। ठीक है, जैसे जर्मनी ने सोचा कि मैं नोट को फिक्स करेंसी को प्रिंट करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, तो हम सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप करेंसी को रेकलेसली प्रिंट करते ही जाओगे, करते ही जाओगे, करते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, उसकी वर्थ जो हो जाएगी, वर्थ जो है, उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी बहुत कम। और वैल्यू कम होने के बाद उसकी जो गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो हो जाएंगे इतने ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद सोचो, आपको एक चॉकलेट जो अभी 5 रुपीज की मिल रही होगी, अगर कोई कंट्री रेकलेसली प्रिंट करती जाएगी, करती जाएगी, तो कुछ टाइम बाद वही 5 रुपीज की चॉकलेट आपको 5,000 में पे करनी होगी। तो गुड्स जो है वो एक्सेसिवली उनका प्राइस बढ़ जाएगा। और इसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। कि अगर हम सोचें कि हम रेकलेसली करेंसी को प्रिंट करते जाएंगे तो हम सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे इंडियन में 800 मिलियन पीपल अभी पुअर नहीं होते, इतने सारे लोग अभी बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होते। हमारी कंट्री भी तो रेकलेसली नोट छाप सकती थी, नोट प्रिंट कर सकती थी और वो पुअर पीपल को बांटती जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारी कंट्रीज अपने आप को अमीर बना देती, सारी कंट्रीज अपने आप को इकोनॉमिकली बूस्ट अप कर देती। तो रेकलेसली आप प्रिंट करते जाओगे, करते जाओगे, तो इससे
कुछ होगा नहीं, आपको नुकसान ही होगा। नुकसान क्या होगा? एक तो उसकी वैल्यू घट जाएगी, उसकी वर्थ घट जाएगी, और जो प्राइस है गुड्स के वो बढ़ जाएंगे। आपको अभी आपके पापा 2000 रुपीज का नोट देते हैं कि अच्छी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपको पैसे मिलेंगे, ये लो बेटा। कितने खुश हो गए आप? 2000 रुपीज हम हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, कितना वैल्यू रखता है। और वहीं पे जब वो अगर कोई कंट्री रेकलेसली करेंसी प्रिंट करने पर आ गई, तो वो 2-2 हजार के नोट आपको हर बेगर के पास मिल जाएंगे। मतलब जो नोट की वैल्यू आज आपके लिए है, वो वैल्यू कल आपके लिए नहीं होएगी उतनी। तो ये प्रॉब्लम अब आ गई। जर्मनी को ये पता नहीं था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो प्रॉब्लम बढ़ गई। सो इज दिस अ वर्दी सॉल्यूशन टू इम्प्रूव प्रेजेंट कंडीशन? तो उसका आंसर है नो। अगर आपको सिचुएशन को सॉल्व करना है तो करेंसी प्रिंट करना इज नॉट दी वर्दी सॉल्यूशन। इससे आपकी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, और जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और यही चीज जर्मनी में हुई। जर्मनी के पास रिसोर्सेज है नहीं, जर्मनी के पास गोल्ड है नहीं, पेपर करेंसी वो प्रिंट करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ हो जाएगी कम, उसकी वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल मिनिमम। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। ज्यादा से ज्यादा आप करेंसी को प्रिंट करते रहोगे तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू उस टाइम पे जर्मन मार्क करेंसी थी वो गिर जाएगी। यूएस डॉलर से कंपेयर करें तो अप्रैल में एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 24,000 मार्क। 1 यूएस डॉलर के बदले आपको 24,000 जर्मन मार्क्स देने हैं। मई में अब जब प्रिंट करती गई जर्मनी करेंसी, तो मई में एक यूएस डॉलर की वैल्यू हो गई 3,53,000 जर्मन मार्क। अगस्त में 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 46,21,000 जर्मन मार्क। दिसंबर में 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 988,60,000 मार्क। मतलब एक यूएस डॉलर की वैल्यू है 988,60,000 मार्क। अगर आपको 1 यूएस डॉलर चाहिए तो आपको 988,60,000 मार्क्स जर्मन मार्क्स देने पड़ेंगे। सोचो वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आपके करेंसी की वैल्यू कितनी पुअर है, कितनी वीक है। और यही चीज ये क्यों हुआ है? क्योंकि जर्मनी ने क्या सॉल्यूशन निकाला? हम करेंसी प्रिंट करेंगे करेंगे करेंगे, और उसका हाल ये हो गया कि करेंसी की वैल्यू हो गई डाउन और गुड्स के प्राइसेस हो गए हाई। वैल्यू हो गई डाउन, गुड्स के प्राइसेस हो गए हाई, और इसी सिचुएशन को बोला गया है हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह की सिचुएशन देखो आप, इतनी ज्यादा करेंसी छप गई है, हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं खरीदने के लिए, क्या करें इनका? लोग क्या कर रहे हैं? अपनी पूरी वॉल को डेकोरेट कर रहे हैं पैसों से। ये देखो, वो पतंग उड़ा रहा है, वो उसने जर्मन मार्क्स की एक काइट बना के वो उड़ाने पे चल रहे हैं बच्चे। ये देखो, ऐसे ऐसे पिरामिड बनाए जा रहे हैं पूरी पूरी गड्ढी के। अब खुद सोचो कि क्या हाल हो गया जर्मनी का, कि इतना आपने जो सॉल्यूशन ढूंढा वो बिल्कुल ही बकवास सॉल्यूशन था। तो वही चीज हुई, जर्मनी की वैल्यू जो थी, जर्मनी करेंसी की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, प्राइस ऑफ गुड्स जो थे वो हद से ज्यादा हाई हो गए। और इसी सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। जो एक टाइम पे एक पीस ऑफ 1 पीस ऑफ ब्रेड लेने के लिए आपको जहाँ 2 या 3 मार्क्स देने होते थे, अब आपको आप इमेज में देखो ऐसे बास्केट भर के, ऐसे बॉक्स भर के आपको मार्क्स देने पड़ रहे हैं वो इतना सा ब्रेड खरीदने के लिए, जो वो आपको 1 या 2 मार्क में मिल जाता था, और अब आपको ये से भर भर के देने पड़ रहे हैं मार्क्स सिर्फ वो इतना सा ब्रेड खरीदने के लिए। तो सोचो कितनी ज्यादा प्राइस हाई हो गए। और इसी सिचुएशन को बोला गया है हाइपर इन्फ्लेशन। द मोर मनी दे प्रिंटेड, जितना मनी आप प्रिंट करोगे द मोर इट विल लूज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू उतनी घटेगी। इवेंचुअली मनी बिकेम वर्थलेस, आपका पैसा हो जाएगा वर्थलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। कि अब जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो गई है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंस्टेबल हो गई है, तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए अमेरिकन ने थोड़ा हाथ आगे बढ़ाया। अमेरिकन ने थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई जर्मनी को। अमेरिकन ने कहा हम जानते हैं आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हो, तो जर्मन अमेरिकन ने एक प्लान इंट्रोड्यूस करा। उस प्लान का नाम था डॉज प्लान। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, ये चार्ल्स डॉज है, इन्होंने ये प्लान इंट्रोड्यूस करा। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग अमेरिकन क्या करने वाले हैं? थोड़ी सी सिंपैथी शो करने वाले हैं। अब किस तरह सिंपैथी वो शो करेंगे जर्मनी को? जर्मनी की हालत बहुत बुरी है, कैसे सिंपैथी शो करेंगे? अमेरिकन ने कहा आपको लोन तो पे करना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन तो पे करना पड़ेगा, पर जो टाइम पीरियड है, अगर आपको पहले 2 साल में पे करना हो रहा था, तो अब हमको आपको 5 साल दे देते हैं, धीरे धीरे पे कर लो, कम कम इंस्टॉलमेंट में आप पे कर लो। तो थोड़ा सा रिलीफ दे दिया था, थोड़ा बर्डन कम कर दिया था जर्मनी के सर से। इसके अलावा यूएसए ने कुछ लोन भी दिया था उनको, शॉर्ट टर्म लोन $25 बिलियन $25 बिलियन का,
लोन भी दिया था कि आप ये लोन लो, अपने दोबारा से रीबिल्ड करो अपनी इकोनॉमी, दोबारा से आप डेवलप, अपने आप को, अपनी कंट्री को डेवलप करो और रीग्रो करो, अपनी ग्रोथ इंक्रीज करो, और फिर आप धीरे धीरे हमको पे कर देना। तो जर्मनी बहुत ही खुश हो गई कि चलो इतने बैड टाइम में, इतने ऐसे सिचुएशन में हमको यूएसए ने हेल्प की। बट जर्मनी इतनी लकी नहीं थी। हुआ क्या स्टूडेंट्स, जो एक लौती कंट्री जो जर्मनी को फेवर कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, उसी कंट्री को एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसके सामने ही एक क्राइसिस आ गई जिसको कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब ऑब्वियसली अमेरिका के ऊपर सामने एक क्राइसिस आ जाएगी तो वो क्या तो जर्मनी की हेल्प करेगी। जर्मनी की सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबलाइज होने लगी थी, बट यूएसए के सामने आ गई एक प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम की बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, देर आर 3 to 4 questions that you have to tell me the answers, of which you have to tell me the answers in comments. The first question is, नेम द पार्टी विच इज इन अपोजिशन ऑफ वेमा रिपब्लिक। वेमा रिपब्लिक के अपोजिशन में कौन सी पार्टी थी? सेकेंड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स टेल मी द आइडियोलॉजी ऑफ स्पार्टासिस्ट लीग। स्पार्टासिस्ट लीग जो पार्टी आई थी उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या बनाना चाहती थी? थर्ड क्वेश्चन, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज डन इन। जर्मनी अपना कंपनसेशन का अमाउंट पे और लोन का अमाउंट किस फॉर्म में पे करते थे? Fourth question, as you print more and more currency, value of money will dash, increase or decrease? As you print more and more currency, value of money will dash, increase होगी या decrease होगी? Last, which country showed sympathy to Germany? Germany को कौन सी country ने sympathy दिखाई? So these are the 5 questions and you have to tell me the answers of these questions in the comments. I hope you understood everything, and still if you have any doubts or queries, feel free to ask me. Thank you and bye bye.